Welcome back students in today's maths class. Today we'll do exercise 1.3. Basically the solutions of exercise 1.3. This is the part 4th of the video containing entire chapter number 1. Right. So we'll do question number 1 first. So in the question number 1 we have to explain whether the above rational number is a terminating or non-terminating, or we can say what kind of decimal expansion is this. So we have seen over here 36 upon 100. After solving this we get 0.36. So 0.36 is basically a terminating decimal expansion, right? Because the remainder will be 0. After dividing this 1 upon 11 we'll get 0. We have seen that 0.090909 is repeating itself. It means we can write 1 upon 11 in the form of 0.09 upper bar, because 0.9 is a repeating number, right? So basically it is a non-terminating decimal expansion. Why? Because the remainder will not be 0. So similarly we will do all the part of the question number 1, right? Now I am having question number 2 for you. In the question number 2, the value of 1 upon 7 is already given. The value of 1 upon 7 is 0.142857. Basically it's a repeating term. It means 0.142857 के ऊपर bar. It means what? It is a repeating term. It means 142857, it's repeat itself. So we have given the value of 1 upon 7 over here, and we have to find out the value of 2 upon 7, 3 upon 7, 4 upon 7, 5 upon 7, 6 upon 7 respectively, right? See, the value of 1 upon 7 we know very well. This is the value of 1 upon 7. If we find out the value of 2 upon 7, then what we need to do, we have to multiply 2 to the 1 upon 7, because 2 upon 7 can be written in the form of this. 2 multiply 1 upon 7. So the value of 1 upon 7 we already know. So multiply the value of 1 upon 7, that is 0.142857. Multiply this number by 2 and we'll get 0.285714. It's also again a repeating number. Fine. So value of 2 upon 7 is this. Similarly we'll find the value of 3 upon 7. It means what? 3 multiply 1 upon 7. Value of 1 upon 7 we know already. So multiply this number by 3, we'll get 0.428571 and so on. And so on we'll find out value of 4 upon 7, 5 upon 7 and 6 upon 7 similarly. Right. Now we'll do question number 3rd. So question number 3rd I have given you for your homework. Okay. So I am explaining the part 2nd of the question number 3rd, that is to express 0.47 bar in the form P upon Q, where Q is not equals to 0. Right. So we have to explain how we can express 0.47 bar in the form of P upon Q. Remember one thing, there is the bar only on the number 7. Right. So what we have to do, we have just taken this number as x. Let x equals to 0.47 bar. One thing I have already told you, that the number containing bar, it's a repeating number. आपको याद होगा जिसके ऊपर बार वो बार बार लिखा जाता था. तो 0.47 bar means what? 0.477777 and up to so on. So we have considered this number as x. So this is our equation number 1. Now because the bar is only on the one number, so we have to multiply both the side by 10. I hope you will remember. Multiply both the side by 10, so we'll get 10x. 10 into x, 10x equals to 4.7777 and up to so on. Right. This will be our equation number 2. I'm repeating again. X equals to, we are having equation number 1, x equals to 0.47777 and up to so on. So we have multiplied both the side by 10. So 10 into x is 10x, and 10 multiplied by this number. So what happened? This decimal shift here, it will become
10 multiplied by this number will become 4.7777 and up to so on. This is the equation number second. Now what we have to do, subtract equation number 1 by equation number 2. तो 10x माइनस x, देखिए इक्वेशन 2 क्या है 10x और इक्वेशन नंबर 1 क्या है x. तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 4.777, ये हमने इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या इक्वेशन नंबर 1 को. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या है 0.477777. तो 10x माइनस x इज 9x एंड 4.77 में से हमने क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया है 0.4777 को. मैंने आपके लिए इस सब्ट्रैक्शन को इस तरीके से लिख दिया है क्योंकि हमें इस तरह से सब्ट्रैक्शन करने की आदत है, राइट. तो 4.777 में से हमने सब्ट्रैक्ट करते हैं 0.4777. देखिएगा 777 से 777 कट सकता है इजीली, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 7 और यहाँ 4. 7 माइनस 4 इज़ 3, डेसिमल एज इट इज़ and 4 as it is. So it will become 9x equals to 4.3. Now x equals to, हमने यहाँ से निकालनी है x की वैल्यू को. तो 9 जो मल्टीप्लाई में है it will goes on divide side. तो x equals to 4.3 अपॉन में 9 डेसिमल साइन हटेगा, एक जीरो हमें मिल जाएगा. तो it will become x equals to 43 अपॉन में 90, राइट. तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ चुका है 43/90 विच विल बी इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. देखिएगा हमने x किसे माना था 0.47 बार, तो हमने 0.47 बार को किस फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे 43/90. तो हमने यहाँ पे 0.47 बार को एक्सप्रेस कर दिया इनटू द फॉर्म ऑफ p अपॉन q. फर्स्ट और थर्ड पार्ट आपको खुद को करने थे, कोशिश कीजिएगा जिसको पहले नहीं आए थे कि अभी वो दोबारा से इस क्वेश्चन को कर सकें. नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5th विद अस. तो इन द क्वेश्चन नंबर 5th हमें पता करना है कि 1/17 को जब हम डिवाइड करते हैं, व्हेन वी डिवाइड 1/17 व्हाट विल बी गेट, हमें क्या आंसर में मिलेगा. तो 1/17 को हम सिंपली डिवाइड करेंगे. देखिएगा तो 1/17 को किस तरह से लिखा जाता है 17 बाहर 1 अंदर. 17 बाहर 1 अंदर, क्योंकि डिवाइड नहीं जा सकता था तो वी हैव टेकन पॉइंट. डेसिमल लेने से क्या हो जाएगा यहाँ 0 मिल जाएगा, एक और 0 की ज़रूरत है, यहाँ पे 0 लिया हमने, यहाँ पे एक और 0 ले लिया. अब हम इजीली इसको डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, और जब हम इसको पूरा डिवाइड कर लेंगे, एक्चुअली डिवाइड बहुत लंबा जा रहा है, आप खुद इसको डिवाइड कीजिएगा प्लीज़. और जब हम इसको पूरा डिवाइड कर लेंगे तो हमें आंसर में ये मिल जाएगा 0.58823529417647. और हमें यहाँ पे यही बताना था कि यहाँ पर कितने ब्लॉक ऑफ डिजिट्स हमें मिलेंगे. तो हमने यहाँ पे जब काउंटिंग करके देखा तो वी आर हैविंग अ ब्लॉक ऑफ 16 डिजिट्स एज रिपीटेड नंबर, राइट. तो इसका आंसर आ जाएगा 16 डिजिट्स, क्योंकि हमें यहाँ पे कितने डिजिट्स मिल रहे हैं आप जब उसको काउंट करके देखेंगे 16 डिजिट. तो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 5th. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6th वी आर हैविंग. इन द क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स लेने हैं जो हमें p अपॉन q की फॉर्म में लिखने होंगे, यानी कि रेशनल फॉर्म में हमें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं. और हमें ये बताना है कि वो जो हम नंबर लेने वाले हैं वो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में होना चाहिए. टर्मिनेटिंग के फॉर्म का मतलब मैं आपको अपने सबसे पहले वीडियो में एक बार बताया था कि टर्मिनेटिंग नंबर हमें कब पता लगता है कि टर्मिनेटिंग नंबर है. तो जिसके डिनोमिनेटर में क्या आना चाहिए, उसका डिनोमिनेटर 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power n की फॉर्म में होना चाहिए. अगर हमें इस फॉर्म में उसका डिनोमिनेटर मिलता है तो हम इजीली बता सकते हैं कि वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, राइट. तो हमें यहाँ पे इस तरह से नंबर लेने हैं कि हमारे वो टर्मिनेटिंग रेशनल्स हों. तो हमने ले लिया एग्जाम्पल 1/2, 5/8, 24/25, 3/125, 19/20 एक्सेट्रा. और भी उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, हमने अभी फिलहाल इतने ही लिए हैं. अब यहाँ पे एक बात पूछी गई है हमसे लास्ट में क्वेश्चन के अंदर, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई. आप जब अपने एनसीईआरटी बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 का, तो वहाँ पे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई. Q यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम बताएंगे दैट Q विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 raised to the power m एंड 5 raised to the power n. तो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है Q, कि वो इस फॉर्म में हमें मिलना चाहिए, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में हमें जो डिनोमिनेटर है यानी कि Q वो इस फॉर्म में हमें मिलना चाहिए. हम जब चेक करेंगे, हमने पहला लिया हुआ है 1/2, तो 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2
रेस्ट पावर 1 एंड 5 रेस्ट पावर 0, क्योंकि 5 रेस्ट पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ से यहाँ पे। अल्टीमेटली हमारे पास क्या रह जाएगा 1/2 ही रह जाएगा, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 5/8। 5/8 को हम जब चेक करेंगे तो 5/8 को हम लिख सकते हैं 2 रेस्ट पावर 3 और 5 रेस्ट पावर 0, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर किस फॉर्म में चाहिए 2 की पावर m एंड 5 की पावर n की फॉर्म में। तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास 8 है तो 5 नहीं आ सकता, लेकिन 5 को हमने जब 5 की पावर 0 की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास अब ये 2 रेस्ट पावर m एंड 5 रेस्ट पावर n की फॉर्म में आ चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है 3/125। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं था तो 2 की पावर को हमने 0 लिख दिया, क्योंकि 2 की पावर 0 मीन्स व्हाट, इट मीन्स 1। 1 तो हम लिख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है 1 से। तो अल्टीमेटली हमारा जो डिनोमिनेटर है वो अगेन किस फॉर्म में आ चुका है 2 रेस्ट पावर m एंड 5 रेस्ट पावर 3, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है 19/20। इट मीन्स व्हाट 19/2 रेस्ट पावर 2 इंटू 5 रेस्ट पावर 1 मिल गया हमें इस फॉर्म में। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमें बताना है राइट 3 नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जिसका रिमाइंडर कभी 0 ना है, और नॉन रिकरिंग का मतलब होता है डिजिट्स नॉट रिपीटिंग आफ्टर सम इंटरवल, यानी कि डिजिट्स अपने आप में रिपीट नहीं करनी चाहिए। हमें इस तरह से कुछ एग्जांपल यहाँ पे देने हैं। 3 एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या ले लिए हैं, तो पहला एग्जांपल हमने लिया है 0.01 001 0001 00001 एंड अप टू सो ऑन। ये नंबर अब जो हम देखेंगे तो कैसा नंबर है, अपने आप में एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि रिमाइंडर का भी 0 नहीं मिलने वाला हमें इसका। और दूसरा हमें यहाँ पे ये नंबर के जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं कर रहे हैं अपने आप में, हमेशा एक नया फॉर्मेट बन रहा है, एक पैटर्न यहाँ पे सेम नहीं मिल रहा है हमें। ऐसे हमने यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया और ऐसे हमने यहाँ पे तीसरा एग्जांपल लिया। तो आपको 3 देने थे, हमने तीनों एग्जांपल यहाँ पे आपको दे दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पता करना है इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 रेशनल नंबर। तो 2 रेशनल नंबर हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 5/7 एंड 9/11। हमें इन दोनों रेशनल नंबर्स के बीच में इरेशनल नंबर्स देने हैं, वो भी कितने 3 रेशनल नंबर्स। तो 5/7 मीन्स व्हाट 0.714285 एंड अप टू सो ऑन। जब आप डिवाइड करेंगे आपको यही मिलेगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं 714285 के ऊपर बार, क्योंकि ये जो नंबर है वो रिपीट करने वाला है अपने आप को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 9/11। इसे हम जब डिवाइड करेंगे विल गेट 0.818181 अप टू सो ऑन। हमें क्या करना है, हमें अल्टीमेटली जो इरेशनल नंबर्स देने हैं वो इरेशनल नंबर इन दोनों नंबरों के बीच में लाया करने चाहिए। तो अब हमारी मर्जी है, हम इन दोनों नंबरों के बीच में कोई भी इरेशनल नंबर यहाँ पे ले सकते हैं। तो पहला नंबर हमने ले लिया 75007500075000। ये हम जब देख रहे हैं तो अपने आप में एक इरेशनल नंबर है जी, बिल्कुल है। और ये नंबर 71 के बाद हमारे स्टार्ट हो रहा है, इट मीन्स इन दोनों नंबरों के बीच का नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है यहाँ पर 0.72300007230000 एंड अप टू सो ऑन। ये नंबर भी हमारे इन दोनों नंबरों के बीच में ही लाई कर रहा है। और सिमिलरली हमने एक एग्जांपल और ले लिया यहाँ पे 8080080000 एंड अप टू सो ऑन, क्योंकि ये नंबर हमारा 0.81 से छोटा नंबर है और इसके बाद का नंबर है। इट में से तीनों ही एग्जाम्पल हमारे इन दोनों नंबरों के बीच में लाया करते हैं। और ये तीनों हमारे एग्जाम्पल्स कैसे एग्जाम्पल्स हैं, इरेशनल्स के एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बड़ा इजी क्वेश्चन है। हमें इसमें सिर्फ इतना ही बताना है कि जो नंबर हमें यहाँ पे गिवन है क्या वो रेशनल है, क्या वो इरेशनल है। अब सीधे सा √23 अपने आप में कैसा नंबर है, इरेशनल, क्योंकि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो आपको एक यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू मिलेगी और एक रिपीटिंग टर्म नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि रिपीटिंग टर्म मिलता तो हम उसके ऊपर बार लगा पाते, और अगर बार लगा पाते तो उसको हम P/Q में कन्वर्ट कर सकते थे। सिमिलरली √225 का मतलब 15 और ये अपने आप में रेशनल नंबर है। 0.3796 अपने आप में एक रेशनल नंबर है। 7.478478 देखिए 478 पे बार आ सकता है, क्योंकि उसके ऊपर बार आ सकता है तो अपने आप में एक ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म ऑफ P/Q। नेक्स्ट 0.10100 ये अपने आप में एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स आई होप यू विल गेट हाउ टू। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट टॉपिक, that is the operations on real numbers, right? So operation means what? So in mathematics we are having 4 mathematical operators that are addition, subtraction, multiplication and division. तो हमें क्या करना है, इन मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को काम में लेना है और हमें रियल नंबर्स में कुछ ऑपरेशंस करने हैं, राइट?
तो फर्स्ट ऑपरेशन वन हैविंग फॉर एडिशन, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा होगा साफ साफ ये इर्रेशनल नंबर्स के अंदर आपको एडिशन करना है। तो वी हैव टू ऐड 3√5 + 2√2 एंड √2 - 5√5। ओके, आपको याद होगा अपने प्रीवियस क्लास का कि आप जब जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे तो आप पहले लाइक एंड अनलाइक टर्म्स को एक साथ लिखा करते थे, और लाइक टर्म्स का ही आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ऐसे ही आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा इस इरेशनल नंबर्स के अंदर भी कि आप सिर्फ लाइक रूट्स को ही सॉल्व कर सकते हैं, लाइक रूट्स को ही आप ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। हमें क्या करना है, 3√5 + 2√2 एंड √2 - 5√5, इसे हमने पहले पूरा एक साथ लिख लिया। 3√5 2√2 ऐड करना है, इसलिए एडिशन का साइन आ गया यहाँ पे, √2 - 5√5। अब हमने क्या किया, सेम रूट्स को एक साथ कंबाइन कर लिया, 3√5 के साथ -5√5 एंड 2√2 के साथ +√2, क्योंकि लाइक रूट्स के साथ ही लाइक रूट एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हो सकता है। तो 3√5 में से हमने 5√5, देखिएगा √5 को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए, 3 - 5 क्या होता है, -2, और √5 आपका एज इट इज़, इट मीन्स 3√5 - 5√5 इज -2√5। सिमिलरली 2√2 यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 तो है, 2√2 के साथ +1√2 दैट विल बिकम 3√2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको भी सॉल्व कर देते हैं, पता नहीं कैसे, क्योंकि ये सॉल्व हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता ये सॉल्व, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे कि अनलाइक रूट्स आ चुके हैं, √5 एंड √2 ये सॉल्व नहीं होगा और यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। राइट, नेक्स्ट हम देखेंगे मैथमेटिकल ऑपरेटर दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो हमें क्या करना है, 3√2 + √5 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, किसमें से, फ्रॉम 4√5 + 2√2। तो 4√5 + 2√2 में से हम सब्ट्रैक्ट करना है 3√2 + √5 को। तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, 4√5 + 2√2 इसे हम पहले लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने पहले ये लिखा सब्ट्रैक्ट, हमने साइन लगाया, और हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 3√2 + √5 इस एंटायर टर्म को, क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिखा जाएगा एंटायर टर्म। क्यों, क्योंकि जो हमें सब्ट्रैक्ट करना है वो उस पूरे एंटायर टर्म को करना है। अब आपको ध्यान होगा क्योंकि सब्ट्रैक्शन का साइन जब बाहर होता है तो अंदर के साइन को चेंज करा देता है, तो इट विल रिमेन एज सच, एंड दिस वन -3√2 एंड माइनस प्लस इज अगेन -√5। नेक्स्ट आपको क्या करना है इसके अंदर, जी हाँ, सेम रूट्स को कंबाइन करना है, लाइक रूट्स को एक साथ लिखना है, 4√5 - √5 एंड 2√2 - 3√2। नाउ सॉल्व दिस, 4√5 में से एक √5 आपका चला गया, तो इट विल बिकम 3√5 एंड 2√2 - 3√2, क्योंकि नेगेटिव का डिजिट बढ़ी है यहाँ पे, तो आंसर विल बी ऑफ नेगेटिव, एंड 2√2 - 3√2 विल बिकम 1√2। अब देखिएगा √5 और √2 अनलाइक टर्म्स आ चुके हैं, यही आपका फाइनल आंसर है, आगे सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारे पास है मल्टीप्लाई के लिए। मल्टीप्लाई में हमें क्या करना होगा कि हमें 3√5 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 3√5 मल्टीप्लाई में 2√3, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो साइन किसका आ जाएगा बीच में, मल्टीप्लिकेशन का। तो देखिएगा अब यहाँ पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम अनलाइक रूट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, याद रखिएगा कि हम अनलाइक रूट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट मीन्स √5 और √3 आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, √5 और √3 ऐड नहीं हो सकता था, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता था, लेकिन मल्टीप्लाई हो सकता है। तो 3 2 6 ऐसा का ऐसा, और √5 एंड √3 विल बिकम √15 एंड आंसर विल बी 6√15। फाइन। नेक्स्ट मैथमेटिकल ऑपरेटर हमारा है डिवाइड के लिए। तो हमें क्या करना है, 8√15 को डिवाइड करना है हमें 4√5 से, क्योंकि 8√15 को डिवाइड करना है किससे करना है, 4√5 से, तो 4√5 नीचे लिखा जाएगा। ओके, अगेन √15 एंड √5 दोनों अलग अलग रूट्स हैं, अनलाइक रूट्स हैं, लेकिन ये डिवाइड हो सकते हैं, बिल्कुल मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं और ये डिवाइड भी हो सकते हैं। Now the next topic is some laws and identities related to the irrational and real number. Right. So the first identity is root AB. अगर हम AB को कंबाइन करके रूट लगा रहे हैं तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, रूट A मल्टीप्लाई रूट B. Right. It means if we write √3 into √5, तो combinedly it can also be written like
रूट 15. फाइन. नेक्स्ट वी आर हैविंग रूट ए अपॉन बी. कंबाइंडली रूट है तो हम अलग अलग रूट भी लगा सकते हैं, लाइक रूट ए अपॉन में रूट बी. जस्ट लाइक इफ रूट 3 अपॉन 5 is here, so we can also written it like root 3 upon root 5. Next we are having third, basically it is a identity. See how root a plus root b, root a minus root b. आपको यहाँ से एक आइडेंटिटी लर्न एक याद आई होगी, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी. क्या होती थी? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो देखिएगा a हमारा इस टाइम अब किस फॉर्म में है? रूट a के फॉर्म में है, और b हमारा किस फॉर्म में है? रूट b के फॉर्म में है. तो रूट a प्लस रूट बी एंड रूट a माइनस रूट बी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? रूट a स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर. इट मीन्स a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब एक चीज़ का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि रूट एंड स्क्वायर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और सिर्फ हमारे पास बचता है a. सिमिलरली रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट करेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ b. तो इट विल बिकम a माइनस बी. अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर ये चीज़ यहाँ पे कैसे सॉल्व हुई, ये आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि रूट और स्क्वायर एक दूसरे के साथ ही कैंसिल आउट हो जाते हैं. उसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल ले लेता हूँ. यहाँ पे आई एम राइटिंग कि रूट 16 को व्हाट वी कैन राइट? 4 स्क्वायर, राइट. और इसके ऊपर रूट. देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे रूट 16 लिखा है, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 और 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 स्क्वायर का मतलब अपने आप में क्या होगा? 16 होगा. और उसके ऊपर जो रूट ऑलरेडी चल रहा है वो रूट हमने यहाँ पे एज इट इज़ लगा दिया है. अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ. जी, रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ. तो 4 स्क्वायर और रूट का मतलब होता है पावर हाफ. इट विल बिकम 4 2 मल्टीप्लाई में 1/2, क्योंकि आपको याद होगा a की पावर m होल पावर m, a की पावर m और a की पावर n. इट विल बिकम a की पावर m इंटू n. तो अगेन इट विल बिकम 4 इज पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2. 2 से 2 कैंसिल आउट एंड इट विल बिकम 4. तो यहाँ पे क्या हुआ? स्क्वायर और रूट एक दूसरे से कैंसिल आउट हुआ और हमारे पास क्या बचा? सिर्फ 4. तो इस तरीके से ये कैंसिल आउट हो पाता है और हमारे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा? a माइनस बी. राइट. नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी नंबर 4, a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी. ये भी कुछ इसी से मैच कर रही है, a प्लस बी और a माइनस बी. लेकिन a तो ऑलरेडी a की फॉर्म में है, लेकिन b हमारे पास किस फॉर्म में है? रूट b की फॉर्म में है. तो a प्लस रूट बी एंड a माइनस रूट बी. इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस रूट बी स्क्वायर. देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब अगेन a स्क्वायर तो एज इट इज़, लेकिन स्क्वायर और रूट कैंसिल आउट और क्या बच जाएगा हमारे पास? सिर्फ b. इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b. नेक्स्ट आइडेंटिटी हमारे पास है रूट a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई रूट c प्लस रूट d. ये बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. क्लास 8 का टॉपिक है, बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन बाइनोमियल के साथ. तो इट विल बिकम, देखिए इसके आइडेंटिटी, इसका आंसर तो देखिए सॉल्यूशन ये निकल के आएगा, लेकिन कैसे आया मैं आपको बता देता हूँ कि पहले रूट a इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा एंड अगेन सिमिलरली रूट b भी इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा. क्या हो जाएगा? रूट a इंटू रूट सी रूट ए सी, रूट a इंटू डी रूट ए डी, रूट b इंटू रूट सी रूट बी रूट सी एंड रूट b इंटू रूट डी रूट बी रूट डी. कंबाइन करके लिख लिया है. फर्स्ट आइडेंटिटी हमने अभी यही पढ़ी थी और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ चुका है. अब आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर तो बहुत अच्छे से याद होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. और उसका प्रूफ भी आपको आता होगा कि ये किस तरह से प्रूफ किए जाते हैं इस आइडेंटिटी को. तो हमारे पास फिलहाल है रूट a प्लस रूट बी का होल स्क्वायर. इट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. तो a हमारे किस फॉर्म में है? रूट a के फॉर्म में. तो रूट a स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है? रूट a और b क्या है? रूट b प्लस बी स्क्वायर, और b हमारे पास क्या है? रूट b का होल स्क्वायर. नाउ इट विल बिकम रूट a का स्क्वायर a, यस वेरी गुड, टू रूट a रूट b को हमने कंबाइन करके लिख दिया है रूट a b, और रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट, इट विल बिकम b. तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ चुका है? a प्लस 2 रूट बी प्लस बी. अब कुछ होमवर्क मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ आज का. ये होमवर्क आपके लिए होगा कि आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन करना है, क्योंकि मैंने अभी आज ही इन्हें सॉल्व करवा दिया है. उसके बाद आपको एग्जाम्पल करना है. इस एग्जाम्पल से थोड़ी सी आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन अच्छी होगी
क्योंकि जब तक आप इन एग्जाम्पल को नहीं समझेंगे और इसको नहीं करेंगे, एग्जाम्पल एज वेल एज दिस क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.5, इससे जब आप अच्छे से कर लेंगे तो ही आप नेक्स्ट टॉपिक सीख पाएंगे जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ, रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन को समझने के लिए हमें ये एग्जाम्पल और ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.5 का बहुत अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी इन रूट्स वाले क्वेश्चंस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप सभी अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे और आप सभी हेल्दी फिट होंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।